Good morning, student. Myself, Dr. Rajendra Rao, working as an assistant professor in GS College of Commerce, Varda. And I taught the subject for MCOM first sem. Name of the subject is Marketing Management. So, in this lecture, we will just discuss the syllabus and books recommended for that particular subject. So, keeping in this view, we will first see the introductory part of that particular syllabus. In Unit 1, just here, Unit 1, I will give a PDF form, the full syllabus in PDF form and allocation of marking. So there is no need to write. You just look for the lecture, listen for the lecture carefully. I will give the syllabus in PDF form and allocation of marks, that is question paper. So we'll just discuss the syllabus. Unit 1, it includes nature and scope of marketing. Nature and scope of marketing. It includes marketing task, corporate orientation towards scanning, different philosophies of marketing, various demand states and the marketplace, the marketing environment and environment. First unit is vast as compared to second unit. So it needs at least 10 lecture. Second unit includes marketing information system and marketing research. Here the marketing information system and marketing research. It includes understanding consumers and industrial market, market segmentation, targeting and positioning. Here is the two separate topic. Marketing information system is there and marketing research is there. Again, there is a big topic of segmentation. Segmentation means market segmentation. It's also a very big topic. So it also requires at least 8 to 10 lectures for the 2 unit. Second unit, unit number 3, divided in 2 parts. First one is the product decision and second one is the promotion decision. In product decision, it includes the product mix, product life cycle, new product development, branding and packaging, decision, pricing methods and pricing strategies. I will again repeat that the unit 3 is divided into 2 parts. First one is the product decision and second one is the promotion decision. In product decision, it includes product mix, product life cycle, new product development, branding and packaging decision, pricing methods and pricing strategies. And second one is the promotion decision. Promotion decision includes the promotion mix, advertising, sales promotion, public relation, personal selling, channel management, selection and emergence of the new channels. I will repeat again that the promotion mix, advertising, sales promotion, public relation, personal selling, channels management, that is distribution channels, selection and emergence of the new channels. And unit 4, it includes the vertical marketing implementation and system. It includes organizing and implementing the marketing in the organization, evaluation and control of marketing efforts, new issues in marketing, globalization, consumerism and green marketing. These are the 4 unit. Books recommended are the marketing management, planning, implementation and control,
V.S. Ramaswamy and Nammakumari. Then marketing management, Philip Kotler. Prentice Hall. And marketing management, Rajan Saxena, Tata McGraw-Hill. These are the few books. इसका जो PDF है सिलेबस और रिकमेंडेड बुक्स का जो PDF फॉर्म में जो है सिलेबस आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ अभी देखना है कि सिलेबस में कितने यूनिट है और किस यूनिट पर जो है ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है। वैसे दिखने को सिलेबस आपको कम दिख रहा है कि सिलेबस जो है वो इतना सही है, लेकिन सिलेबस की डेप्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में भी डिफरेंट फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग है, बड़ा है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, वो भी बहुत बड़ा है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है ये टाइटल का पूरा एक जो है वो बुक हो सकता है, इतना बड़ा टॉपिक ये है। मतलब सिलेबस दिखने को भले ही छोटा दिख रहा है, लेकिन उसकी डेप्थ जो है वो ज़्यादा है। जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग, बहुत सारे फिलोसॉफीज है, उस पर पूछने के लिए बहुत सारा स्कोप है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट का एक सब्जेक्ट हो सकता है, इतना बड़ा एक टॉपिक है। उसके बाद में यूनिट 2 में जो है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक इंडिपेंडेंटली एक जो है टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद में मार्केटिंग रिसर्च, ये मार्केटिंग रिसर्च भी जो है वो बहुत बड़ा, इसमें डेप्थ नहीं दी है। यानी मार्केटिंग रिसर्च में क्या क्या है इसकी डेप्थ दी हुई नहीं है, इसलिए मार्केटिंग रिसर्च जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें का इंपॉर्टेंट जो भी है वो सभी कवर करना है, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च के अंदर क्या क्या आएगा इसका कुछ भी जो बाइफर्केशन है वो इसमें सिलेबस में दिया हुआ नहीं है। यूनिट 3 में भी वैसी है, प्रोडक्ट डिसीजन दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक अच्छा है कि भले ही प्रोडक्ट डिसीजन दिया हुआ है, प्रोडक्ट डिसीजन भी ये एक टॉपिक है बहुत बड़ा, लेकिन प्रोडक्ट डिसीजन में क्या क्या है इसका बाइफर्केशन दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ प्रोडक्ट डिसीजन में प्रोडक्ट मिक्स है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, प्राइसिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटेजीज है। मतलब ये जो पर्टिकुलर हेडिंग है प्रोडक्ट डिसीजन, इसका सब बाइफर्केशन मतलब उसमें क्या क्या है इसके पूरे डिटेल दी हुई है। वैसे ऊपर जो है मार्केटिंग रिसर्च, अब मार्केटिंग रिसर्च में क्या क्या है इसके पूरे डिटेल इसमें नहीं आए हैं। प्रमोशन डिसीजन, इसके भी पूरे डिटेल है। प्रमोशन डिसीजन में क्या क्या देखना है हमको, प्रमोशन मिक्स देखना है, एडवर्टाइजिंग देखना है, सेल्स प्रमोशन देखना है, पब्लिक रिलेशन देखना है, पर्सनल सेलिंग देखना है, मतलब सभी आ गए। उसके बाद में चैनल मैनेजमेंट देखना है, तो चैनल मैनेजमेंट में भी सिलेक्शन ऑफ चैनल्स एंड इमर्जेंस ऑफ द न्यू चैनल्स, ये इतना जो है वो हमको देखना है। मतलब बाइफर्केशन जो है वो बाइफर्केशन पूरा का पूरा दिया हुआ है। मतलब अपने पास एक आइडिया आ जाएंगे कि इसमें ये पर्टिकुलर थर्ड यूनिट में प्रोडक्ट डिसीजन में हमको क्या क्या पढ़ना है ये हमको मालूम है, प्रमोशंस डिसीजन में क्या क्या पढ़ना है वो पूरा बाइफर्केशन दिया हुआ है, वर्ड टू वर्ड दिया हुआ है। उसके बाद में यूनिट 4 जो है वर्टिकल मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड सिस्टम, इसमें भी दिया हुआ है ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द मार्केट इन द ऑर्गेनाइजेशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स, न्यू इश्यूज इन मार्केटिंग। अब न्यू इश्यूज इन मार्केटिंग दिया हुआ है, उसमें ग्लोबलाइजेशन भी दिया हुआ है, कंज्यूमरिज्म भी दिया हुआ है, ग्रीन मार्केटिंग भी दिया हुआ है। ये इंडिपेंडेंटली ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म और ग्रीन मार्केटिंग ये इंडिपेंडेंटली बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। इन एंड ऑल मतलब जो जितना सिलेबस दिख रहा है उतना छोटा वो है नहीं, डेप्थ में जाके पढ़ना है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तो आपको पढ़ने में और आसानी होंगी। मैंने एक वैसे सिलेबस तो आपको PDF फॉर्म में मिल ही जाएगा, लेकिन इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो टाइटल है रामास्वामी और नम्माकुमारी का जो बुक है वो बहुत बढ़िया है। मतलब कुछ कुछ टॉपिक उसमें क्या मार्केट सेगमेंटेशन है, मार्केटिंग रिसर्च है, कुछ कुछ टॉपिक जो है वो बहुत बढ़िया है। मतलब डेप्थ में उसको दिया हुआ है। पूरा का पूरा सिलेबस कोई भी एक बुक्स में नहीं मिलेगा। एक पर्टिकुलर बुक में एक टॉपिक होगा, दूसरे पर्टिकुलर बुक में दूसरा टॉपिक होगा, तो ऐसा कलेक्ट करके नोट्स आपको प्रिपेयर करना है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट एज फार एज PG student, particularly PG student is concerned, it is expected that you have to prepare your own notes. You have to take the xerox, take the books from library, take the xerox copy and attach in the file. आप
पीजी के स्टूडेंट है, पीजी के स्टूडेंट से ये हम अपेक्षा रख सकते हैं कि आप आपके खुद के नोट्स तैयार कीजिए। नोट्स कैसे तैयार करना, सिलेबस आपके पास में है। जब भी वीडियो लेक्चर होंगे तब आपको पता रहेगा कि किस प्रकार से कितनी सब्जेक्ट की डेप्थ है। आप बुक्स निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है तो आप उसकी जेरॉक्स निकाल के फाइल में आप लगा सकते हैं। ऐसा वैसे तो लिखना चाहिए, लेकिन आप जेरॉक्स अवेलेबल है तो जेरॉक्स करके आप फाइल में लगा के रख सकते हैं। तो आपके खुद के ही जो है वो नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो रामास्वामी नम्मा कुमारी का एक बुक है जिसका टाइटल है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें आपको कुछ टॉपिक मिल जाएंगे। उसके बाद में फिलिप कोटलर का बुक है, इसका भी टाइटल जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट है। तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे पर्टिकुलरली सिलेबस के। तो इन एंड ऑल जो है वो सिलेबस एकदम छोटा नहीं है, थोड़ा लेंदी सिलेबस है। इसलिए शुरुआत से ही अगर आप उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं जाएंगी। अब इसके वाइज यूनिट 1 वाइज हम चलेंगे। जैसे यूनिट स्टार्ट करेंगे, इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं पहले आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। जो भी ग्रुप बना हुआ है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो पीडीएफ अभी तक डाला हुआ नहीं है। आज या कल में आपको इसका पीडीएफ जो मिल जाएगा। आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर जो लेक्चर दूंगा तो उसके जो भी नोट्स है या असाइनमेंट है आपको ग्रुप पर देते जाऊंगा। तो आपने कम से कम हर 2 दिन के बाद में जो है उसमें चेक करना है कि कोई असाइनमेंट या कोई नोट्स या और कुछ जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आया है क्या। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो है आपके लिए सिर्फ होमवर्क इतना है कि आप जो है ये सिलेबस रेफर कर लीजिए, एक बार सिलेबस देख लीजिए। पेपर पैटर्न जो है, पेपर पैटर्न भी दिया है, पेपर किस प्रकार होगा ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है ये सिलेबस हमको कंप्लीट करना है। और जितना अच्छे तरीके से होगा, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे एक ही ऑथर की बुक ने, अगर आपके पास समय है तो आप वही टॉपिक जो है आप एक बुक्स में से पढ़ के देखो, वही टॉपिक आप दूसरे बुक्स में से पढ़ के देखो। जो जगह से आपको अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल मिले तो उसको एक्सेप्ट करो। बस आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।